will start with the new chapter, that is chemical thermodynamics. Okay, so this is a very important chapter in chemistry and also a very interesting chapter. Okay, so without wasting time, let's start with the video. Okay, first of all, let us see what do we mean by the word chemical thermodynamics. Okay, so first let us understand what do we mean by chemical thermodynamics. Before starting with chemical thermodynamics, let us first focus on what do we mean by thermodynamics. Okay, now this thermodynamic word can be broken into two, that is thermo and dynamic. Dynamic means the one which is related to the energy change. Energy changes can be defined as dynamic. Okay, and thermodynamic, thermal, we all know that thermal means related to heat. So whenever there is an energy change taking place with respect to the heat, then it can be termed as thermodynamic. Okay, so this thermodynamic is concerned with the energy changes in physical and chemical transformations. Means what? That chemical thermodynamics, in chemical thermodynamics we are studying about the energy changes. Yes, I've said that dynamics means energy change. So in thermodynamics we will be studying about the energy changes. But energy changes in which type of process or which type of transformations? In physical transformation as well as chemical transformation. What do we mean physical transformation and chemical transformation? Suppose if I say that you are heating a water in a beaker. Okay, so what are you doing? You are providing a heat energy to that beaker. So this is a physical process. So the energy changes which are going to take place in this system will be under the physical transformation. Whereas if you are providing some heat for the chemical reaction to be taken place, okay, chemical reaction को perform करने के लिए अगर आप heat provide कर रहे हो, then there will be energy change in that system and that will be called as the chemical transformation. Means the thermodynamics under the chemical transformation. So these thermodynamic is concerned with the energy changes in both processes, physical as well as chemical. But in this chapter, since we are studying chemical thermodynamics, we will emphasize on the chemical transformations and especially the transformation of the heat and work. Okay, so what amount of heat is given to the system, what changes takes place, and whenever such type of heat is given or whenever an energy change takes place through the heat medium, then what type of the work is done, that we are going to study under the chemical thermodynamics. So this chemical thermodynamics can be defined as it is the study of interrelation of heat and work with the chemical reactions. Okay, so the study of interrelation, दोनों के बीच में का relation, heat और work के बीच में का. कब heat और work के बीच में का? जब कोई chemical reaction में heat provide हो रही है and the work is done. Okay, so now before moving forward, I must like to know that whether do you know what do we mean by work? You all have studied in the lower classes that work done means the force into displacement. मतलब वर्क तभी पॉसिबल है अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी वर्क हो रहा है. अगर मैं यहाँ से कुछ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, किसी चीज को धक्का देने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत देर से मैंने मेहनत की है, तो वो वर्क नहीं कहलाएगा जब तक कि वो पर्टिकुलर चीज जिसे मैं हिलाना चाहती हूँ वो अगर नहीं हिलती, तो जो हमारी साइंस की लैंग्वेज में हम उसे वर्क नहीं कहेंगे. वर्क तभी पॉसिबल है जब वहां पर क्या होगा? देयर विल बी द एनर्जी चेंज प्लस द डिस्प्लेसमेंट. मीन्स द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों चीजें जब आएगी तभी वहां पर वर्क डन होगा. तो ये वर्क की जो डेफिनेशन है वो हम माइंड में रखेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वर्क एंड द हीट इंटर रिलेशंस in this chapter. Okay, now before moving again forward, अब ये जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, ये जब हम स्टडी करेंगे तो देयर आर मेनी साइंटिफिक टर्म्स दैट आर गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन. कुछ वर्ड्स हैं जो हमने नॉर्मल जनरली हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते, तो वो चीजें हम इसमें दैट वी आर गोइंग टू फेस इन दिस चैप्टर. सो
before starting this chapter, today I'm going to take some introductory part only, and in which we are going to study about the different terms that we are going to use in this chapter. Okay, so let's start with that. Now, in chemical thermodynamics, whenever we are going to study a system, we are going to study whatever thing, whatever matter we are going to study, that will come under the term, the terms that is system. Okay, that will come under the term system. So in thermodynamics, the three basic terms that we are going to hear again and again are system, surrounding and the boundaries. मतलब जिस भी रिएक्शन की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस भी मैटर की हम स्टडी कर रहे हैं, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? सिस्टम. सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू यूज अ वर्ड सिस्टम मीन्स व्हाट, जिस भी चीज, अगर एक कंटेनर में आप वाटर ले रहे हैं और आप उसका हीट ट्रांसफर उसमें स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया? आपका सिस्टम. ओके, देन अब इस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का जितना भी एरिया है, सरफेस एरिया जो भी है बाहर का, मतलब उस सिस्टम के बाहर, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स सराउंडिंग. ओके, सो द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. अब इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड इट्स बाउंड्री. सिस्टम्स बाउंड्री. जैसे कि मैंने बोल दिया आपको कि आपने एक सपोज यू आर टेकिंग सम वाटर इन अ बाउल एंड यू आर गोइंग टू स्टडी द हीट एंड द वर्क ओवर दैट बाउल. ओके, सो इन दिस व्हाट विल हैपन? Your bowl is your boundary, the water inside your bowl is the system of which you are going to study, and all the things around your bowl is your surrounding. Okay, so in this figure you can see that here this is a system. जिसको हम पढ़ना चाहते हैं वो हो गया हमारा सिस्टम. देन उसकी जो बाउंड्री है, मतलब ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स बाउंड्री. और ये जितना भी एरिया इस सिस्टम के बाहर है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सराउंडिंग्स. फॉर एग्जांपल दिस, अब ये हमारा सिस्टम हो गया. इस सिस्टम में मैंने सपोज ये जो अंदर जो भी लिक्विड या जो भी सोल्यूशन, वॉट एवर आई एम गोइंग टू स्टडी, दैट इज माई सिस्टम. देन दिस, the outer area which is out of the system is called as the surrounding, and the container in which I have taken my system, in which I have kept my system, that will be its boundary. Okay, so these terms will be regularly used in chemical thermodynamics. इसलिए हमें पता होना चाहिए. अब इसके बाद जब भी मैं आपके लिए आगे words use करूंगी system, तो you should understand system means what. System means the matter which we are going to study. Okay, that is called as the system. अब ये जो सिस्टम है, द सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम. नाउ इन दिस केस वी आर स्टडिंग अबाउट द हीट एंड द वर्क. है ना, मैंने क्या बोला? थर्मोडायनेमिक्स हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? हीट एंड वर्क के इंटर रिलेशन के बारे में. तो इसी के बेसिस पे किसी भी सिस्टम को तीन पार्ट में, तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ओके, एंड दैट थ्री टाइप्स आर द ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम सबसे पहले हम स्टडी करते हैं. ओपन सिस्टम क्या है? ओके, नाउ यहाँ पर मैंने क्या बताया? हमको सिर्फ हीट एंड वर्क के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, अब हीट एंड वर्क के बारे में स्टडी करना है, मतलब क्या है? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिस्टम में हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर. ठीक है, ये दो चीजें. मास मीन्स जो भी हमारा कंटेंट है उस सिस्टम में, अगर वाटर ले रहे हो दैट बिकम्स इट्स मास, अगर आप कुछ सॉलिड कंपाउंड ले रहे हो देन दैट विल बिकम द मास. सो दिस इज योर मास. ओके, एंड हीट इज योर अगेन सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो ये हीट एंड मास बोथ कंप्राइज ऑफ अ सिस्टम. अब इस सिस्टम में पहला टाइप है आपका ओपन सिस्टम. अब ओपन सिस्टम मतलब कि सपोज एक सी ले लिया हम लोगों ने, वाटर रिवर ले लिया, ये क्या बन गया? एक ओपन सिस्टम है जहां पर कंटिन्यूसली हीट का ट्रांसफर भी हो रहा है और मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है. द वाटर इज गेटिंग इवेपोरेटेड और देन आफ्टर कंडेंसेशन in the form of the rainfall again the river is getting the water. Means what? This system is acting as an open system where the transfer of heat and matter both are taking place. Okay, then second type is the closed system. अब एक closed system, second is the closed system जहां पर heat का ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है. ओके, सपोज आप सिंपल से एक वाटर बॉटल ले लो.
या कोई भी एक कंटेनर जिसको आपने क्लोज करके रखा है और उसमें हॉट वाटर लिया है, ओके। अब अगर ये सिंपल सा आपका एक कंटेनर जिसमें आपने हॉट वाटर लिया है, अगर आप उसको 10 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, यस। तो व्हाट हैज हैपेंड, द हीट ट्रांसफर हैड टेकन प्लेस, बट उसमें का जो वाटर है वो कहीं नहीं गया। वाटर का वॉल्यूम जो है वो इनिशियल जितना वॉल्यूम था अभी भी वो उतना ही वॉल्यूम, मतलब मैटर का ट्रांसफर वहां पर नहीं हुआ है। सिर्फ किसका ट्रांसफर हुआ है, हीट का ट्रांसफर हुआ है। सो सच टाइप ऑफ सिस्टम विल बी कॉल्ड एज द क्लोज्ड सिस्टम। उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड टाइप है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। सिंपल एग्जांपल इसका लेना चाहे तो हम थर्मस फ्लास्क, हमारे घर पे थर्मस फ्लास्क सभी ने देखा है, इन विच वी कीप द हॉट टी और कॉफी। what happens in the thermos flask, there is neither the exchange of heat nor the matter with the surrounding। ना तो वो ठंडा होता है, मतलब हीट ट्रांसफर भी ले नहीं रहा है, हीट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, और उसमें का मैटर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सो सच टाइप ऑफ सिस्टम विल बी कॉल्ड एज एन isolated system, okay। So we are going to study these types of system in thermodynamics। So these are the three different types: open system, closed system and isolated system। Now अब ये जो system है, this system has certain properties, okay, like we all have properties। हमारी क्या properties है, जैसे हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी प्रॉपर्टीज हम कैसे लेंगे कि मेरी कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज है और कुछ एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है, ओके। अब इंटरनल प्रॉपर्टीज मतलब क्या हो गया, माय नेचर, ओके, जो भी माय थिंकिंग्स, जो भी मैं सोचती हूँ, जो मेरा नेचर है, जो चीजें वक्त के साथ या मेरे वजन के साथ या मेरे एज के साथ नहीं चेंज होती, दैट आर माय इंटरनल प्रॉपर्टीज। In the same way, system is also having two types of properties: intrinsic properties and extrinsic properties। Intrinsic properties are those which do not change or which are not affected by the change in the amount of the substance, okay। So the intrinsic property is the property which is independent of the amount of substance present in the system। मतलब वो amount के ऊपर depend नहीं करती। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैंने सिस्टम 10 ml लिया है और अगर मैं सिस्टम 50 ml, पहले मैंने 10 ml लिया, उसको बढ़ा के 50 ml किया, तब भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होगी। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है कि सपोज मैंने टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, कि मैंने पहले ग्लास में 10 ml सपोज ले लिया है वाटर और उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर ले लेंगे हम 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसी में मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का और वाटर ऐड कर दिया, तो टेम्परेचर में कोई चेंजेस आएंगे नहीं। सो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, ये सभी क्या है, intensive properties which are independent of the amount of substance present in the system, okay। अब और भी examples देखना जाए तो color will also not change, then luster means the shine which a compound is having, then its hardness also doesn't change with the amount। So these all properties are the intrinsic properties। जिस तरह से हमारी internal properties change नहीं होती हमारे वजन बढ़ जाने से या हमारे काले हो जाने से या कोई और हमारी properties जो है change नहीं होती, that are called as our intrinsic properties। And extrinsic properties means my outer appearance, मैं आज कैसी दिख रही हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, लंबी हूँ या कम हाइट की हूँ, ये सब क्या है, मेरी एक्सटर्नल अपीयरेंस, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो इन दिस सेम वे सिस्टम में भी क्या है, we have the extrinsic properties and these properties depend upon the amount of substance present in the system। मीन्स ये जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैंने स्टार्टिंग में 10 ml सब्सटेंस लिया है तो उसका मास कितना रहेगा, अबाउट 10 ग्राम। सपोज हम ले लेते हैं कि 10 ml मैंने सोल्यूशन ले लिया, उसका मास है 10 ग्राम। अब मैं इसमें और 35 ml और ऐड कर रही हूँ या 40 ml मैंने और वाटर ऐड कर दिया, तब भी मास चेंज सेम रहेगा क्या, नहीं। अब क्या हो जाएगा, मास विल बी डिफरेंट। मीन्स नाउ दिस
property which is dependent upon the amount of substance taken will be an extensive properties. इसमें और कुछ examples देख लें तो size, weight, length, lust, ये सब चीजें क्या है, सभी these are the extensive properties. Okay. Now let's move to the next. So up till now we have seen about the types of system. There are three types: open system, closed system and isolated system. And these systems are categorized into two properties. They have two types of properties: extensive property and intensive property. Intensive property which are independent of the amount of substance taken, and extensive properties are those which are dependent upon the mass of the substance. Okay. Now next we are going to see about the state function. Next जो है हम study करेंगे that is a thermodynamic state function. Okay. Suppose if I am studying some system, ठीक है, तो एक सिस्टम है, इस सिस्टम का मैंने कुछ चेंज कर दिए, कुछ वेरिएबल्स चेंज कर दिए. जनरली अब यहाँ पर जब भी हम सिस्टम पढ़ेंगे तो सिस्टम में जो वेरिएबल्स पे हम लोग ध्यान देंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू मोस्टली स्टडी अबाउट द गैसेस. सो द गैसेस follow the an ideal gas follows the equation PV is equals to nRT. Okay, gas follows the equation PV is equals to nRT. मतलब कौन कौन से वेरिएबल्स आ गए उसमें? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर. तो ये जो चार वेरिएबल्स है, कौन कौन से बोले मैंने? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसका. ये जो सभी प्रॉपर्टीज है, जनरली हम ये चार प्रॉपर्टीज इसमें स्टडी करने वाले हैं, बिकॉज वी आर मोस्टली एम्फसाइजिंग ऑन द सिस्टम दैट कंटेन्स अ गैस. ठीक है, एंड वी नो दैट गैस ओबेज द आइडियल गैस लॉ. ओके, तो ये जो वेरिएबल्स है पीवी एंड आर टी, पीवी एन एंड टी, तो ये जो वेरिएबल्स है ये क्या होंगे अगर सिस्टम में ये वेरिएबल्स चेंज होते हैं. ओके, सिस्टम में अगर ये वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो जो चेंजेस आए वो चेंजेस सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे. इसी को हम क्या करेंगे? स्टेट फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम. मतलब स्टार्टिंग में आपने जो सिस्टम लिया उसका प्रेशर कितना था, उसका वॉल्यूम कितना था, उसका टेम्परेचर कितना था, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था. अब सपोज उस सिस्टम में आपने कुछ चेंजेस कर दिए, तो अब फिर से उसका प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये जो फाइनल स्टेट रहेगी, ये जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये जो चेंज हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन. So a state function is defined as the property of the system that depend on the initial and final state of a system. ठीक है, and is independent of the path followed in getting from one to another. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टेट फंक्शन है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ सिस्टम का इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि किस रास्ते से वो फर्स्ट स्टेट से दूसरी स्टेट में आया है. ओके, जैसे एक जगह से सपोज मेरे घर से कॉलेज जाने के यहाँ पे 5 से 6 रास्ते हैं. ओके, सो मैं आज घर पे हूँ, अब मैं 11 बजे सपोज घर पे हूँ, दैट इज माई इनिशियल स्टेट. 11:30 बजे मैं कॉलेज पहुंच गई, दैट इज माई फाइनल स्टेट. अब इस इनिशियल और फाइनल स्टेट की जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की, ये आ गया मेरा स्टेट फंक्शन. अब ये स्टेट फंक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि मैं कॉलेज पहुंच गई. ओके, दैट इज स्टेट फंक्शन. अब मैं कैसे पहुंची, मैं कार से गई, मैं टू व्हीलर से गई, मैं बस से गई, मैं ऑटो से गई, या मैं किस रास्ते से गई, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. ओके, सो दिस स्टेट फंक्शन सिंपली इज अ function or is a property which depend only upon the initial and final state of the system. For example, अब ये देखते हैं हम यहाँ पर हम लोगों ने दो ग्राफ लिए हैं. अब यहाँ पर दिख रहा है हमें ये फर्स्ट इज Ti, मतलब ये मेरा इनिशियल टेम्परेचर और ये मेरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर. ओके, तो अब ये जो टेम्परेचर के बीच में का जो डिफरेंस है डेल्टा टी, ये एक स्टेट फंक्शन है. ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, TF माइनस TI, मतलब फाइनल में से मैं इनिशियल अगर माइनस करती हूँ तो मुझे डेल्टा वैल्यू मिल जाएगी. सो दैट विल बी माय स्टेट फंक्शन. अब ये स्टेट फंक्शन आया कैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये इतना कम हुआ, इतना टेम्परेचर बढ़ा, देन सेकेंड स्टेप में यहाँ तक के टेम्परेचर गया, ये इसके ऊपर डिपेंड
नहीं करता. इट जस्ट डिपेंड अपॉन द फाइनल एंड द इनिशियल. जब भी हम स्टेट फंक्शन डेल्टा टी की वैल्यू निकालते हैं हम क्या करेंगे, टी एफ माइनस टी आई. यहाँ के छोटे छोटे वेरिएबल्स लेंगे क्या, नहीं. सो देयरफॉर डेल्टा टी इज अ स्टेट फंक्शन. ओके, the one which depend only upon the initial and final state will be called as the state function. Okay, have you understood? Now let's see this. Okay, this has been taken from your book. Now suppose if we are studying about a system. Okay, this is suppose a system whose first initial pressure is suppose 1 atmosphere, volume is suppose 1 dm cube, temperature is suppose 300 Kelvin initially, and number of moles are constant. Okay, now this अब हमने इस सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दिए. चेंजेस क्या कर दिए कि प्रेशर 1 बार से बढ़ा के हमने 2 बार कर दिया. वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब से हमने 2 डीएम क्यूब कर दिया या 0.5 डीएम क्यूब कर दिया. और टेम्परेचर जो है उसको हमने मेंटेन रखा 300 केल्विन. मतलब यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स को चेंज कर दिया, तो सिस्टम चेंज हो जाएगा. यस. सो अब ये जो सिस्टम चेंज हो गया, दिस इज द फाइनल सिस्टम. सो the change between these variable changes in these variable will be called as the state function, because they will depend only upon the initial and final state and will not depend upon the path followed to reach that final state. Okay, so these are the state functions. Have you understood? ये कुछ important terms है chemical thermodynamics के. पूरा introductory part ही हम आज इस वीडियो में ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को सिर्फ अभी यही समझना है कि हर एक चीज क्या है. ये सभी टर्म्स का हम यूज करके आगे थर्मोडायनेमिक्स में बढ़ेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस सी नाउ. अब ये जो पार्ट है नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब ये जो भी सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं, दैट सिस्टम शुड बी अंडर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. ओके, सच सिस्टम शुड बी अंडर द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. दिस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किस तरह से हो सकता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम रीच करना मतलब क्या है? अब इस इक्विलिब्रियम को, पोजीशन को हासिल करने के लिए सिस्टम को ये तीनों इक्विलिब्रियम को रीच करना होगा. मतलब द सिस्टम शुड हैव अ थर्मल इक्विलिब्रियम, इट शुड हैव मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इट शुड बी अंडर द केमिकल इक्विलिब्रियम. अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम में रहता है, देन दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज अंडर द thermodynamic equilibrium. Although this part has been deducted from your syllabus this year. Okay, this year आप लोगों को in 2020, we are in 2020-21. So due to this pandemic corona, most of the syllabus has been deducted, and this thermodynamic equilibrium is also deducted from your syllabus. But we should know some of the terms, although this will not come in the exam, but these thermodynamic equilibrium will be helpful for the further parts of the chapter. So you must at least understand what are these. Okay, so now this thermodynamic equilibrium can be attained by the 3 steps: thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium. Now let's see what is thermal equilibrium. अब कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, थर्मल इक्विलिब्रियम भी है उसमें, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है. मतलब ये तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट है. अब लेट अस अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ इट. पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, मीन्स एक टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अटेंड अगर कर लेता है सिस्टम, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अ कप ऑफ टी या कोई भी ग्लास ऑफ आइस वाटर, कुछ भी ले लो. अब अगर आपने एक कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ टी को आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रूम में रख दिया. ओके, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? द ट्रांसफर ऑफ द हीट विल टेक प्लेस. ओके, दिस इज द क्लोज सिस्टम. सो ट्रांसफर ढक के भी रख दिया अगर आपने, तब भी क्या होगा? सिस्टम क्या हो रहा है यहाँ पर? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट. अब ये हीट ट्रांसफर जो है, जब हीट ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक कि आपकी टी का नॉर्मल रूम टेम्परेचर अटेंड नहीं हो जाता. यस, दिस विल टेक प्लेस. अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद अगर मैं रखते जाती हूँ तो क्या होगा? चाय ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी. बट क्या वो बर्फ बन जाएगी? नो. यस, वो कहाँ तक के ठंडी होगी?
जितना आपका रूम टेम्परेचर है, सराउंडिंग का, सिस्टम के बाहर का जितना टेम्परेचर है, उतना टेम्परेचर जब तक रीच नहीं हो जाता तब तक के ये हीट ट्रांसफर का प्रोसेस चलता रहेगा। एक बार आपका हीट टेम्परेचर, आपका रूम टेम्परेचर अटेंड हो गया, मतलब आपका बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और आपके टी का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इसके बाद आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगा। एट दैट टाइम the system will attend an equilibrium, means it is now in equilibrium with the surrounding, and that is called as the thermal equilibrium. इसी को हम क्या बोलेंगे? thermal equilibrium. okay, मतलब thermodynamic equilibrium में अगर system है तो it should be in the thermal, it should have a thermal equilibrium. Second, it should also have a mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium means what? That the pressure is constant. Pressure is constant. मतलब जितना प्रेशर आप लगा रहे हो उतना ही सराउंडिंग भी अगर उस चीज पर प्रेशर अप्लाई कर रही है, then that system will be under the mechanical equilibrium. Okay, so you can see over here, अगर ये हम लोग कंसिडर करें, दिस इज अ मूवेबल वॉल सपोज. ओके, तो अगर मैं यहाँ से हाई प्रेशर अप्लाई करती हूँ, इस साइड अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, देन दैट विल मूव टूवर्ड्स द लो प्रेशर. ओके, जिस तरफ लो प्रेशर रहेगा, जहां पर प्रेशर कम लगा रहे हैं, यहाँ पर कोई सपोज कोई ज्यादा ताकत वाला इंसान खड़ा है और यहाँ पे कम ताकत वाला इंसान खड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वॉल जो है वो पुश हो जाएगी. अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक अच्छे हाई स्ट्रेंथ वाला कोई पर्सन और यहाँ लो स्ट्रेंथ वाला पर्सन, तो अब वॉल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगी. बट अब अगर दोनों तरफ इक्वल प्रेशर है, दोनों के पास इक्वल स्ट्रेंथ है, एंड दोनों तरफ से अगर इक्वल प्रेशर हम उस वॉल पे अप्लाई कर रहे हैं, देन दैट wall will not move, means it will be an equilibrium position because the external pressure and the internal pressure both will be the same, and in such cases the system will be said to be under the mechanical equilibrium. okay, and third is chemical equilibrium. chemical equilibrium तो हम already पढ़ चुके हैं ionic equilibrium में. chemical equilibrium हम कब कहते हैं? when there are two reactions, forward reaction and reverse reaction, and when the rate of forward reaction and the reverse reaction becomes equal, then that will be called as the chemical equilibrium. so suppose अगर हम consider करें, this is the forward reaction and this is the reverse reaction. अब यहाँ जिस स्पीड से ये वाटर फ्लो हो रहा है, उसी स्पीड से अगर वाटर रिवर्सिबल रिएक्शन में भी अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है, देन देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम अटेंड इन द बीकर. यस, so such a system will be called under the chemical equilibrium. So for a system to be under a thermodynamic equilibrium, it has to attain thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium. Okay, then that system will be said to be under the thermodynamic equilibrium. Now let's study about the thermodynamic process. ये तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया कुछ. अब है thermodynamic process. In thermodynamics we are going to study about the different types of process. okay, process मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं. process मतलब कि जब हम सिस्टम में कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ चेंजेस अगर कर रहे हैं, तो that becomes my process. okay, so this thermodynamic process is nothing but when a thermodynamic system changes from one state to another, then that change, the operation that is of changing from one state to another, this is called as a process. okay, now this process involves the change of the condition. कौन कौन सी changes मैंने अभी बताया था आपको, कौन कौन सी changes हम लोग जनरली स्टडी करेंगे? temperature, volume, pressure. okay, so when there is a change of these different conditions, temperature, pressure and volume, then that is said to be thermodynamic process. okay, so the different thermodynamic processes are isothermal process, adiabatic process, isobaric process, isochoric process and cyclic process. ऐसे 5 प्रोसेस हमको इस थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करना है. ठीक है, मतलब सिस्टम में क्या क्या चेंजेस कब कब होंगे और किस टाइप का प्रोसेस होगा, क्या सिस्टम किस तरह से वेरी होगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट इज योर isothermal process. isothermal process, simple word, also word itself gives the meaning. process का मतलब तो हमें पता चल गया
कि जब भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस. अब आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम, आइसो का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट, थर्मल मीन्स टेम्परेचर. तो जब कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के टाइम अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस. सो इट इज अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब कितना भी हम उसको चेंज कर लें, जब भी हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, पूरे टाइम अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, then that process will be called as the isothermal process. Okay, now this change of state or the phase or changes of the different liquid through the process of melting and evaporation are the examples of isothermal process. जो भी melting का process हो रहा है या evaporation का process हो रहा है, ये सभी time क्या है? Temperature constant maintain हो रहा है. Okay, so that is called as an आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम लोगों ने आइस है, आइस को आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिया, वो क्या होगा? आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग. बट क्या उससे टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर को अफेक्ट हो रहा है क्या? नो, इट इज द सेम, इट इज कांस्टेंट. सो दैट इनिशियल स्टेट उसकी थी आइस की और अब वो मेल्ट होके वाटर बन गया है. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द temperature is the constant. So this is one of the example of isothermal process. और अच्छा सा example ले तो हमारी रेफ्रिजरेटर में अंदर आप अगर वहां पे आपने देखा होगा कि एक टेम्परेचर कंट्रोल का नॉब होता है. तो अगर आपको टेम्परेचर कंट्रोल के नॉब को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख देते हो, मीन्स व्हाट? यू आर मेंटेनिंग दैट टेम्परेचर इन योर रेफ्रिजरेटर. ओके, सो रेफ्रिजरेटर में प्रोसेस चलता रहेगा. पहले आपका वाटर है, वाटर से आइस बन रहा है. ओके, स्टेट ऑफ चेंज स्टेट हो रहा है, मतलब प्रोसेस हो रही है एक. ओके, इनिशियल स्टेट अलग है और फाइनल स्टेट अलग है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? प्रोसेस चेंज हो रही है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. नाउ ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स जीरो. internal energy is zero and delta T is also zero. delta T is zero मतलब क्या? delta T मतलब क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. और टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रखा है, मतलब फाइनल टेम्परेचर भी वही है, इनिशियल भी वही है. तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो. बट इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी. अब इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? सिंपल, इंटरनल एनर्जी, हमारे अंदर की एनर्जी, सिस्टम के अंदर की एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी. अब ये जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज क्यू माइनस डब्ल्यू. अगर इसे हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यू माइनस डब्ल्यू. मतलब हमने कितनी हीट ऐड की सिस्टम में और उसने कितनी हीट यूज करके वर्क डन किया, ये दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है वो क्या बन गई? आपकी इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी कितनी थी? जितनी आपने हीट प्रोवाइड की वो हो गई आपकी इनिशियल एनर्जी. अब वो हीट प्रोवाइड होने के बाद कुछ ना कुछ वर्क हुआ, तो वो वर्क माइनस कर लेंगे. उतना वर्क में एनर्जी यूज हो गई, तो बची हुई एनर्जी क्या है? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. ओके, so that delta U is equals to Q minus W. This is one of the very important expression and we are going to use this expression again and again in this chapter. Okay, so remember delta U is equals to Q minus W, where delta U is the change in internal energy. U matlab internal energy. So change in internal energy is equals to Q minus W.
So adiabatic process is that one which occurs without the transfer of heat or matter between the thermodynamic system and its surrounding. तो ये जो हमारा close isolated system है, that is an example of adiabatic process. Okay. So in this case, Q will be equals to 0. Therefore, internal energy will be equals to, yes, internal energy will be equals to the work done, because delta U is equals to Q minus W and Q is 0. Therefore, the internal energy will be equals to the work done. Okay. Next is the isobaric process. Third है process जो हम पढ़ेंगे, that is isobaric. अब iso again means same and bar किसका है हमारा unit? Pressure का. So isobaric means जिसमें हम constant pressure रखेंगे. Okay. So the process in which the pressure remains the constant is called as an isobaric process. तो डेल्टा P will be equals to 0. प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर क्या है? सेम है. तो दोनों अगर सेम है, इसका मतलब क्या हो गया? सिस्टम में डेल्टा P की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0. ओके. सो सपोज ये एक एग्जांपल यू कैन सी इन दिस फिगर. ये हम लोगों ने सिस्टम ले लिया है, ये उसकी इनिशियल स्टेट, ये है हमारी फाइनल स्टेट. ऑल्दो द मास इज चेंजिंग, मतलब यहाँ पर हमारा वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है. यहाँ 1 मीटर क्यूब है, यहाँ पर हमारा 2 मीटर क्यूब है. टेम्परेचर इज ऑल्सो चेंजिंग फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, बट द pressure remains the same. Means the system has changed from initial state to the final state with constant pressure. Such type of process is called as an isobaric process. Okay. Next is isochoric process. Isochoric process. So in this process the volume remains the same. Volume change नहीं होगा. Initial state में जितना volume है उतना ही फाइनल स्टेट में भी रहेगा. बाकी के वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है एंड बाकी वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, सच टाइप ऑफ प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज द आइसोकोरिक प्रोसेस. डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0. सब ये एग्जांपल देख लेते हैं. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इन दिस केस वी आर प्रोवाइडिंग हीट and we are in the initial state there is no heat. So this is before heating and this is after heating. But in both the case you can see that the volume remains the same. So this is your initial state, this is your final state, but the volume remains the same, and such type of system or such type of process will be called as the isochoric process. And last is the reversible or the cyclic process. ठीक है. Reversible reaction मतलब जो forward और backward reaction में एक साथ हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन. उसी तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब अगर हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं तो हम फाइनल से वापस इनिशियल की तरफ आ सकते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके. सो in the we can define it as a reversible process is the one which can be taken from initial state to the another state and then back to the initial state without any change to either the system or the surrounding. मतलब जिस तरह से हम initial से final की तरफ गए उसी तरह हम final से initial की तरफ आएंगे. system को कुछ भी affect नहीं होगा, system में कोई भी change नहीं होगा. That type of process will be called as a reversible process or a cyclic process. Okay, आप लोगों के book में you have been given a reversible process, but most of the time the cyclic word is also used for this process. So you should know both the names. That type of process will be called as a reversible process or a cyclic process. Okay, so this can be very well understood by this example. Okay, so now in this case you can see that here we have taken some gas and a piston is attached to it. ये जो पंप रहता है साइकिल में हवा भरते हैं ना, आपने वो पंप देखा ही होगा, उसी टाइप का पंप है ये. दिस इज कॉल्ड एज अ पिस्टन. ओके, दिस वी आर गोइंग टू यूज इन दिस कंप्लीट चैप्टर अगेन एंड अगेन. ओके, तो ये पंप का हमें बहुत काम है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त. सो अब ये जो पिस्टन है इसमें मैंने क्या किया है? वी हैव अप्लाइड अ प्रेशर. ओके, ये हमारा प्रेशर अप्लाई किया हमने. अब प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या हो गया? द वॉल्यूम हैज रिड्यूस्ड. ओके, नाउ इफ आई रिमूव दिस प्रेशर, अब इसमें से मैंने क्या किया? आधा प्रेशर कम कर दिया. प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा? द अगेन गैस विल एक्सपांड एंड देयरफॉर योर वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड द प्रेशर हैज बीन रिड्यूस्ड. फिर हमने उसका और थोड़ा प्रेशर कम कर दिया तो क्या होगा? और गैस एक्सपांड हो जाएगी एंड योर पिस्टन विल अगेन मूव अपवर्ड.
सो इन दिस वे इट विल मूव अपवर्ड. तो ये हो गया मेरा इनिशियल स्टेट और ये हो गई मेरी फाइनल स्टेट. यहाँ तक के मेरा पंप आ गया. अब इसके बाद तो मेरा पंप और ऊपर जा नहीं सकता, इतना ही वॉल्यूम यहाँ पर रहेगा. सो अब ये मेरी इनिशियल स्टेट हो गई, फाइनल स्टेट हो गई. अब इसी फाइनल स्टेट से मैं इनिशियल स्टेट में कैसे आ सकती हूँ? बाय अगेन अप्लाइंग अ प्रेशर. फिर से मैंने उतना ही प्रेशर अप्लाई किया जितना मुझे यहाँ पर चाहिए था, एंड आई कैन अटेंड दिस प्रोसेस एंड अगेन टू द बैक टू द इनिशियल स्टेट. सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस सिंपल, ये आपका वही है पंप. ओके, पंप में आप क्या करते हो? आप प्रेशर अप्लाई करते हो, फिर आप रिलीज करते हो, फिर प्रेशर अप्लाई करते हो, फिर रिलीज करते हो. सो व्हाट यू आर डूइंग, this is a reversible process, okay, in which the process can be taken from initial to another state and again from the final to the initial state. So that is called as the reversible process. Okay, have you understood this much? So for this मैंने कुछ चीजें सीखी आज, जैसे कि first we have seen about the what do we mean by chemical thermodynamics. Then the different terms that we are going to use in thermodynamics, जैसे कि system, surrounding, boundary. Then the types of the system: closed system, open system, isolated system. Then the properties of the system: intrinsic properties and extrinsic properties. Then the state function and the different types of thermodynamic process, such as isothermal process, adiabatic process, then reversible process, isobaric process, isochoric process. So all these processes we have done, and these all things that we have done today are just the introductory part, and this will be helpful in studying the thermodynamics easily in the next video. Okay, so in the next video I will continue with this chapter only, and if you have any query, you may ask me in my comment box.